My dear students, in this session we'll be doing some questions related to conclusions part, the statement and conclusion. Okay, so start करते हैं. First question is saying all illusions and deceptions are believable. This news report is not believable. This annual report is believable. Some illusions and deceptions are amusing. So what should be our approach in the questions of conclusion? क्या हमें करना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए? देखो conclusion जनरली क्या है, as we discussed in assumption वाला क्वेश्चन कि assumption is always precursor to a statement. Inference is always after knowledge. Assumption is precursor. So that is something that we always presume before the statement. It comes before. Chronology को समझो. And inference always comes after. Similarly, conclusion जो है, that is also derived from the statement. It is similar to the inference. So it also comes after the statement. So it should be consistent with what is being said in the statement. Is it clear? ठीक है. So for example, ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, this is a question as such of syllogism. तो एक दो क्वेश्चन मैंने syllogism वाला भी रखा है, so that you are clear कि हमेशा syllogism का जो क्वेश्चन आएगा वो उस फॉर्मेट में ही नहीं आएगा जैसे syllogism जनरली आते हैं. और syllogism वाले वीडियो में भी मैंने ऐसा एक क्वेश्चन इसीलिए रखा था, so that you are able to crack such questions as well अगर एग्जाम में आता है तो, which does not look like a syllogism, but ultimately syllogism से that question becomes easy. For example, in this question, all illusions and deceptions are believable. This news report is not believable. This annual report is believable. Some illusions and deceptions are amusing. So is are दोनों तरफ देखो. तो पहला हमारा क्या कह रहा है, all illusions and deceptions are believable, which implies कि illusions and deceptions are a subset of believable ones. Is that it so? यानी कि ये पूरा का पूरा हमारा believable के सेट के अंदर आएगा. Is this clear? B से रिप्रेजेंट करें उसको तो. This news report is not believable, यानी कि this news report is a disjoint set with the believable वाला set. This news report T and R. This annual report is believable, यानी कि this annual report is inside the believable वाला set T A R. And some illusions or deceptions are amusing. Some illusions and deceptions are amusing. So यानी कि some illusions and deceptions will have something common with the set of amusing. Is this diagram clear? ठीक है, अब कंक्लूजन पे चलते हैं. पहला कंक्लूजन कह रहा है दिस एनुअल रिपोर्ट इज अम्यूजिंग. इज दिस ट्रू? दिस एनुअल रिपोर्ट इज अम्यूजिंग. सो दिस एनुअल रिपोर्ट कहां पे? ये है. इज दिस अम्यूजिंग? नो, दिस कंक्लूजन कैन नॉट बी ड्रॉन. दिस एनुअल रिपोर्ट इज एन इल्यूजन एंड डिसेप्शन. इज दैट कंक्लूजन, कैन दैट बी ड्रॉन? नो, दे आर डिफरेंट, कैन नॉट बी ड्रॉन. पॉसिबिलिटी की बात करता तो पॉसिबिलिटी हो सकता था, बट क्योंकि डायरेक्ट कंक्लूजन बात कर रहा है तो दिस इज नॉट ट्रू. दिस न्यूज रिपोर्ट इज नॉट ट्रू. ट्रू की तो कहीं पे बात ही नहीं की गई है. सो दिस इज कंप्लीटली एब्सर्ड, नॉट अ कंक्लूजन. दिस न्यूज रिपोर्ट इज अम्यूजिंग. दिस न्यूज रिपोर्ट यहाँ पे है, अम्यूजिंग यहाँ पे है. कंक्लूड नहीं कर सकते. पॉसिबिलिटी की बात होती तो कुड हैव बीन पॉसिबल, बट we cannot conclude that. This news report is not an illusion or a deception. So definitely illusion और deception पूरा का पूरा हमारा believable के पार्ट के अंदर है, और believable और this news report में कुछ भी कॉमन नहीं है. एब्सोल्युटली कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है. तो यस, दिस न्यूज रिपोर्ट इज नॉट एन इल्यूजन और अ डिसेप्शन. सो ऑप्शन 5 हमारा आंसर हो जाएगा. इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट इज सेइंग इफ फिश कैन नॉट ब्रीड दे विल डाई. कोरल रीफ्स आर द ओनली ब्रीडिंग प्लेसेस ऑफ फिश. All coral reefs will be destroyed by humans 20 years from now. So what conclusion can we draw? If fish cannot breed, they will die. And coral reefs are the only breeding places. So if these breeding places are going to vanish in 20 years, what will happen? Fish will not be able to breed and hence they will die. All of them will die. Isn't it so? In how much time? In 20 years. पहला conclusion क्या कह रहा है? New species of fishes will appear. डज नॉट मेक सेंस, आउट ऑफ स्कोप, क्योंकि इनके बारे में कहीं पे भी बात नहीं हो रही हमारे स्टेटमेंट में न्यू स्पीसीज ऑफ फिश का. हमेशा कंक्लूजन में जो बातें हैं स्टेटमेंट से ही लिया गया है, क्योंकि स्टेटमेंट का ही कंक्लूजन है. जो बात स्टेटमेंट में मेंशन ही नहीं है, दैट इज आउट ऑफ स्कोप फॉर द कंक्लूजन. कोरल रीफ्स विल फॉर्म इन द डीपेस्ट सी, अगेन आउट ऑफ स्कोप, डज नॉट मेक सेंस. सीज एंड ओशंस विल हैव हायर सॉल्ट कंटेंट. सॉल्ट कंटेंट की भी कहीं पे बात नहीं हो रही है, कंप्लीटली एब्सर्ड, आउट ऑफ स्कोप. फिशेज विल बी वेरी एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव और चीप की बात कहाँ से आ गई? ये तो कहीं पे बेचने की बात थोड़ी कर रहा है फिश को, ठीक है ना. ये तो कह रहा है फिशेस के ब्रीड करने की बात कर रहा है. सो अगेन
does not make sense. Fishes will cease to exist. So yes, from 20 years from now, fishes will cease to exist. That is the correct statement. Option E is the correct answer. Is it clear? Next question पे चलते हैं. अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्टेटमेंट इज सेइंग द एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन इन B.Ed is a minimum first class graduate degree. Eligibility for admission in B.Ed is a minimum first class graduate degree. However, the candidate who have appeared in the final year examinations are also eligible to apply on the condition that they will submit the mark sheet by 31st July. So basically एलिजिबिलिटी क्या है एडमिशन का कि फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट डिग्री होना ही होना चाहिए. अगर वो नहीं होगा तो एडमिशन नहीं होगा. दैट इज व्हाट एलिजिबिलिटी मीन्स. ठीक है. सो दैट इज मिनिमम. बेयर मिनिमम क्या है? पहली चीज़ है ग्रेजुएट डिग्री तो होना ही चाहिए, फर्स्ट क्लास भी होना चाहिए. दोनों चीज़ें मिनिमम एलिजिबिलिटी है, ग्रेजुएट प्लस फर्स्ट क्लास. दिस इज मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन. इससे कम में एडमिशन नहीं होगा. देन कंक्लूजन क्या कह रहा है? फर्स्ट कंक्लूजन इज सेइंग द कैंडिडेट हु आर येट टू गेट देयर ग्रेजुएट डिग्रीज विल बी देयर इन द लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड वंस. नो, वी कैनॉट कंक्लूड दैट बिकॉज द स्टेटमेंट इज सेइंग कि candidates who have appeared in the final exam are eligible to apply. They are eligible to apply. They are not eligible for admission. And the condition is that they have to submit the mark sheet by 31st July. So is it clear? Definitely first conclusion does not withhold. The candidates who are yet to get their graduation degree will not be there in the list of selected ones. They have to submit their mark sheet. They have to submit their mark sheet. And this is the condition. इसके बाद में ही उनका सिलेक्शन हो सकता है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सेकंड कंक्लूजन क्या है? ऑल कैंडिडेट्स हु हैव ऑब्टेन्ड फर्स्ट क्लास डिग्रीज विल बी देयर इन द लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स. प्रॉब्लम क्या है? ऑल. दैट इज द एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन, बट दैट इज नॉट श्योर शॉर्ट गारंटी कि जो भी फर्स्ट क्लास जिनके पास डिग्री होगा ग्रेजुएशन का, दे विल बी सेलेक्टेड. दैट इज नॉट अ गारंटी. इजंट इट सो? क्लियर है? ठीक है. सो ऑल इज द प्रॉब्लम. Some of them will be selected, some will not be. ठीक है. स्टेटमेंट कहीं पे भी नहीं कह रहा है कि all will be selected. Definitely this is also not the conclusion. अगर स्टेटमेंट कहता कि all will be selected तो फिर अलग की बात थी. तो none follows. Option A will be our answer. Next question. In China, COVID cases increased drastically while in India the rate was slow, but the total number of cases was more in India. China में cases drastically increase किए, but India में rate slow था, but ultimately total volume, total number of cases was higher in India. फर्स्ट कंक्लूजन क्या है? चाइना हैड बेटर कंट्रोल ओवर कोविड केसेस एज कंपेयर टू इंडिया. इज इट साउंड? इज इट साउंड? स्टेटमेंट क्या कह रहा है? चाइना में केसेस ड्रास्टिकली इंक्रीज किए, बट अल्टीमेटली इंडिया में ज्यादा नंबर ऑफ केसेस हुए. यानी कि ड्रास्टिकली इंक्रीज करने के बाद में चाइना में केसेस कम हुए. इजंट इट सो? सो यस, चाइना हैड बेटर कंट्रोल ओवर कोविड केसेस एज कंपेयर टू इंडिया. दिस इज अ करेक्ट कंक्लूजन फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट. सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कोविड हैड लेस रेट ऑफ स्प्रेड इन चाइना देन इन इंडिया. लेस रेट ऑफ स्प्रेड. पहले तो डेफिनेशन ही क्लियर नहीं है कि रेट ऑफ स्प्रेड को हम कैसे डिफाइन करेंगे. सेकंड बात यह है कि कोविड केसेस इंक्रीज ड्रास्टिकली इन चाइना. सो लेस रेट ऑफ स्प्रेड तो हम नहीं कह सकते, वहां पे भी इंक्रीज ड्रास्टिकली हुआ था, बट अल्टीमेटली टोटल वॉल्यूम इंडिया में ज्यादा रहा. सो लेसर रेट ऑफ स्प्रेड, नो, वी कैन नॉट कंक्लूड दैट. ठीक है. बिकॉज अगर इंक्रीज भी नहीं होता, बहुत कम केसेस होते, अल्टीमेटली भी कम रहा, तो फिर हम वी कुड हैव कंक्लूडेड दैट यस द रेट ऑफ स्प्रेड वाज लेसर, बट देयर वाज इनिशियली ड्रास्टिक इंक्रीज इन चाइना. इंडिया में कंपैरेटिवली स्लो था, बट अल्टीमेटली टोटल नंबर ऑफ केसेस इंडिया में ज़्यादा थे, चाइना में कम थे. सो यस, सेकंड कैन नॉट बी कंक्लूडेड, फर्स्ट कैन बी, फर्स्ट शुड बी, ओनली ऑप्शन बी, ओनली वन फॉलोज. इज इट क्लियर? नेक्स्ट है इंडियन इकोनॉमी इज डिपेंडेंट मेनली ऑन फॉरेस्ट. Indian economy is dependent mainly on forests. Okay, so first conclusion is afforestation must be done to preserve the forests. So since Indian economy is dependent mainly on forests, so yes, afforestation should be done, must be done to preserve the forests. The first is correct conclusion. Okay, second is saying India wants only the maintenance of forests to improve the economy. Only is the problem. ठीक है. Maintenance of forests is needed because Indian economy is dependent mainly on them, but the only is the problem. ठीक है कि सिर्फ यही करना है तो इकोनॉमी इंप्रूव हो जाएगी, नॉट नेसेसरली. बाकी चीज़ें भी करनी पड़ेंगी जिन पे कि इंडियन इकोनॉमी डिपेंड करता है, कम करता है, ज़्यादा करता है, बट वो बाकी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है. तो सेकंड इज डेफिनेटली नॉट द आंसर. ओके, सो ओनली वन फॉलोज. नेक्स्ट, good health is a luxury in a country like America, thus the expectation of life
are comparatively high compared to other countries within the continent. Good health is a luxury in a country like America. So what does that mean? इसका मतलब क्या हुआ कि गुड हेल्थ अगर एक लग्जरी है कंट्री लाइक अमेरिका में, यानी कि वहाँ पे सबके पास गुड हेल्थ नहीं है, दैट इज़ अ लग्जरी, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ना दैट इज नॉट व्हाट द स्टेटमेंट मीन्स। इट मीन्स दैट इन अ कंट्री लाइक अमेरिका गुड हेल्थ इज अ लग्जरी, बट बाकी जगह पे क्योंकि कंपेयर किया है बाकी कंट्रीज से, एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ आर कंपेरेटिवली हायर कंपेयर टू अदर कंट्रीज। बाकी कंट्रीज में ऐसा नहीं है, इजंट इट सो? तो बाकी कंट्रीज में आप गुड हेल्थ को नहीं, आप गिवन नहीं मान सकते हो, बाकी जगह पे इश्यूज हैं, बट इन ए कंट्री लाइक अमेरिका गुड हेल्थ इज अ लग्जरी दैट यू कैन एंजॉय। फर्स्ट कंक्लूजन है हमारा, गुड हेल्थ इज द बून ऑफ नेचर। सो दिस माइट बी, बट दिस इज दिस द कंक्लूजन ऑफ द स्टेटमेंट? नॉट। स्टेटमेंट तो कहीं पे भी नेचर की बात नहीं कर रहा कि नेचर का बून है कि कर्ज है कि क्या है क्या नहीं है, तो डेफिनेटली आउट ऑफ स्कोप है, बिकॉज नेचर के बारे में कहीं कोई बात नहीं कर रहा है स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है पीपल इन कंट्रीज लाइक अमेरिका कैन अफोर्ड टू हैव ऑल लग्जरीज ऑफ लाइफ। ऑल इज द प्रॉब्लम हियर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक लग्जरी की बात हो रही है, एंड दैट लग्जरी इज गुड हेल्थ, इजंट इट सो? ऑल लग्जरीज की कहीं कोई बात नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, नन फॉलोज, ऑप्शन ए विल बी अवर आंसर। इज दिस क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड डिटरमाइन द मेन पॉइंट द ऑथर इज ट्राइंग टू मेक। मेन पॉइंट द ऑथर इज ट्राइंग टू मेक, व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन from the argument. One of the given four options supports the author's argument better than the others do. ठीक है, सो वी हैव टू आइडेंटिफाई द कंक्लूजन आउट ऑफ द फोर। पहले स्टेटमेंट को पढ़ना है, एंड दीज आर इजी क्वेश्चंस, बस उसको राइटली पढ़ के एक बार पॉज करके खुद से जरूर अटेम्प्ट करो, ठीक है। दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस, इसमें गलती होने का गुंजाइश नहीं है, बट स्टिल एक बार ट्राई करो। नाउ अ डेज पीपल आर सो बिजी इन देयर वर्क दैट दे डू नॉट टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ। A lot of diseases like diabetes, arthritis, heart attack, blood pressure are increasing due to unhealthy lifestyle. People do not find time to exercise. Stress is continuously increasing. Fast food is quick, easy, tastes better, but it is not healthy. Habits like smoking, drinking alcohol have many side effects. Polluted city environment has also negative impact on the health of citizens. To live happy and healthy life, it is important to take care of itself. Take care of yourself, oneself. ठीक है, people are busy, lot of diseases, unhealthy lifestyle, no time to exercise, stress increasing, habits like smoking and drinking, side effects, polluted city environment, so important to take care of oneself. People busy, unhealthy lifestyle, important to take care. अब ऑप्शंस क्या है? फर्स्ट ऑप्शन हमारा कह रहा है नाउ ए डेज एवरीबडी स्मोक्स एंड ड्रिंक्स। सो अगेन अ वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट, अ वेरी एक्सट्रीम कंक्लूजन कैन नॉट बी द कंक्लूजन फ्रॉम द स्टेटमेंट दैट इज गिवन। स्टेटमेंट्स जो हमें दिए हुए हैं, इनमें क्या दिया है कि सम ऑफ देम आर डूइंग इट, ठीक है, और हैबिट्स लाइक स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, अल्कोहल हैव मेनी साइड इफेक्ट, बट ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि सब लोग ऐसा ही कर रहे हैं। सो और एब्सोल्युटली अब्सर्ड, आउट ऑफ स्पोक, और एक्सट्रीम स्टेटमेंट है सबसे इंपॉर्टेंट, बिकॉज एवरीबडी कह रहा है। That is why this cannot be concluded. Second, diseases are increasing only because of pollution. Again, this only extreme cannot be the conclusion. Option C, people are happy and stress-free because their life is too busy. Completely opposite to what the statement is saying, suggesting. Isn't it so? They are not happy and not stress-free because stress तो लगातार increase कर रहा है. So this is not the conclusion, quite the opposite. And option D is saying current city environment, lifestyle, habits are affecting health of citizens. So yes, that can be concluded because that is directly mentioned in the passage as well. Clear है? Option D will be our easy answer for this question. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सिमिलर हमारा स्टार्टिंग लाइन है. फिर कह रहा है दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स विच सिग्निफाइज दैट गुड विल ऑलवेज बी बेटर देन इविल. In the present day, many people have developed a lot of negativity in their minds and hearts, which has led to high corruption and higher crime rates. Value-based education is the need of the day to eliminate darkness of cruelty, selfishness, and greed, and bring the light of wisdom, peace, kindness, truthfulness, right attitude, hard work, cooperation. बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं. महात्मा गांधी also said that we should eradicate sins from hearts, not the sinners. पाप से घृणा करो, पापी से मत करो. ठीक है. If a society has people with good heart, it will definitely flourish. Another ज्ञान की बात. ठीक है. So basically बहुत सारी ज्ञान की बातें इस पूरे पैसेज में कही गई हैं. कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन के बारे में फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन ए, नो नाउ इट इज नोबडी इज गुड. अगेन अ वेरी एक्सट्रीम वर्ड, नोबडी.
और ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है। ये जरूर है कि हाई करप्शन है, हायर क्राइम रेट है, लॉट ऑफ निगेटिविटी है, बट नोबडी इज गुड, नॉट द कंक्लूजन. Nowadays, everybody is corrupt and criminal. Again, a very extreme statement. That is not what the paragraph is suggesting. Option B is also wrong. Value-based education can save the society from crime and corruption. So yes, that is in the right lines. D कह रहा it is not possible to fight against corruption as everybody is corrupt. Everybody is corrupt. Problem है इससे. ठीक है, not possible. Problem है इससे. तो D तो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनता है. ना तो A, B, D absolutely absurd statement थे, तो clearly C is the winner और C will be our answer. क्लियर है? इजी क्वेश्चन अगेन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट वन इज सेइंग ऑल्दो most of the fastest growing jobs in today's economy will require a college degree, many of the new jobs being created from home, health aid to desktop publisher require knowledge other than gained from earning a degree. So these jobs, the home health aid, the desktop publisher, they require knowledge other than gained from a college degree, from earning a degree. For workers in these jobs, good basic skills in reading, communication and mathematics play an important role in getting a job and developing a career. So if one wants to get such a job, then one should have good basic skills in reading, communication, mathematics, and then this will play an important role in getting job. यानी कि इसकी वजह से ही उसको जॉब मिलेगा and he or she can develop a career. From the information given above, it can be validly concluded, यानी कि अगेन हमें कंक्लूजन ही ड्रॉ करना है, that in today's economy, फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है स्किल इन रीडिंग, कम्युनिकेशन एंड मैथमेटिक्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग अ कैरियर एज अ डेस्कटॉप पब्लिशर. सो एज डेस्कटॉप पब्लिशर मेंशन्ड है, सो दिस इज probably the answer. This is satisfying the conditions, so definitely this could be the answer. Option B कह रहा है majority of the new jobs being created require knowledge other than that gained from earning a college degree. ठीक है, क्या इसको हम वैलिडली कंक्लूड कर सकते हैं? हमारा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? स्टेटमेंट को फिर से जाते हैं. स्टेटमेंट कह रहा है मेनी ऑफ द न्यू जॉब्स. ठीक है, स्टेटमेंट कह रहा है मेनी ऑफ द न्यू जॉब्स, बट हाउ मेनी वी डू नॉट नो. हाउ मेनी वी डू नॉट नो. और यहां पे कह रहा है मेजॉरिटी ऑफ द न्यू जॉब्स. मेजॉरिटी इज डिफरेंट फ्रॉम मेनी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 20% ऑफ द न्यू जॉब्स कैन ऑल्सो बी मेनी, बट 20% इज नॉट मेजॉरिटी. दिस इज लेस देन 50%. दिस इज माइनॉरिटी. इज इट क्लियर? सो मेनी और मेजॉरिटी में फर्क है. सो सेकंड स्टेटमेंट हमारा कंक्लूजन नहीं हो सकता है. अगर मान लो कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स के लिए नीचे पूछा जाता ऑप्शन में, तो हमें पता है कि सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. मेजॉरिटी इज नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज. पैसेज कह रहा है मेनी ऑफ द न्यू जॉब्स, तो ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट. दिस इज entirely wrong. ऑप्शन सी क्या कह रहा है? अ जॉब एज अ होम हेल्थ एड विल रिलाई मोर ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स देन ऑन बेसिक स्किल्स इन रीडिंग एंड मैथमेटिक्स. तो हमें क्या कह रहा है? फॉर वर्कर्स इन दोज जॉब्स good basic skills in reading, communication and mathematics play an important role. So there should be good basic skills in reading, communication and mathematics. Segregation में नहीं बता रहा है, बट यहाँ पे statement C क्या कह रहा है? A job as a home health aide will rely more on communication skills. This might sound true in general, मतलब कि अगर रियल लाइफ के एक्सपीरियंस की बात करें तो ये सही लग सकता है, बट स्टेटमेंट में कहीं पे भी ऐसी कोई बात मेंशन नहीं है कि एक होम हेल्थ एड को ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल में बेटर होना चाहिए एज कंपेयर टू रीडिंग एंड मैथमेटिक्स. सो दिस इज नॉट अ वैलिड कंक्लूजन, नॉट मेंशन्ड इन द स्टेटमेंट. हमें स्टेटमेंट का कंक्लूजन ड्रॉ करना है. ठीक है, अपने दिमाग के हिसाब से नहीं ड्रॉ करना. तो सी इज डेफिनेटली नॉट करेक्ट. डी कह रहा है इफ अ जॉब इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब्स इट विल रिक्वायर अ कॉलेज डिग्री. ठीक है, इट विल रिक्वायर अ कॉलेज डिग्री. हमारा स्टेटमेंट का पहला लाइन क्या कह रहा है? ऑल्दो मेनी ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब्स इन टुडेज इकोनॉमी विल रिक्वायर अ कॉलेज डिग्री. मोस्ट ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब्स इन टुडेज इकोनॉमी विल रिक्वायर अ कॉलेज डिग्री. मोस्ट के बारे में बात कह रहा है, ऑल के बारे में बात नहीं कह रहा है. ठीक है, सो मोस्ट इज एनीवे सम. अगर हम सिलोजिज्म टाइप से बात करें, वेन डायग्राम टाइप से बात करें, तो मोस्ट ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब्स विल रिक्वायर अ कॉलेज डिग्री. तो ये मान लो कि मोस्ट हमारा ये हो गया कि ये जॉब्स हैं और इतनी सारी जॉब्स को चाहिए कॉलेज डिग्री. ये डिग्री है कॉलेज की और ये जॉब है, तो इतनी सारी जॉब्स को चाहिए कॉलेज डिग्री. बट स्टिल देयर कैन बी सम, दिस इज नॉट मोस्ट, बट देयर कैन बी सम which do not require college degree. So it is quite possible. Is that it so? So if a job is one of the fastest growing jobs, it will require a college degree. ये तो डेफिनेट कह रहा है कि जो भी जॉब होगी फास्टेस्ट ग्रोइंग होगी, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग होगी, उसको एक कॉलेज डिग्री चाहिए होगी. नो, दिस इज नॉट करेक्ट, नॉट ऑलवेज करेक्ट. सो डी इज ऑल्सो नॉट अ वैलिड कंक्लूजन. मोस्ट को चाहिए होगा, सबको नहीं चाहिए होगा. ठीक है, और यहाँ पे सब की बात कह रहा है, इसलिए ऑप्शन डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट. एंड डेफिनेटली ऑप्शन ए हमारा सही बात कह रहा है, दैट इज करेक्ट. वो तो शुरू से ही पता है हमको, बट बी सी डी और डी को निगेट करना भी जरूरी है, बिकॉज हमेशा क्वेश्चन इतना इजी नहीं होगा, या फिर हमेशा आपको सीधे सीधे आंसर ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, तो बाकी ऑप्शंस को आपको निगेट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा कि विच वन आर इनकरेक्ट, और उससे हमको पता चलेगा विच वन इज एक्चुअली करेक्ट. इज इट क्लियर? ठीक है,
सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू कंक्लूजन. आई बिलीव कि सेशन में आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और आगे अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कंक्लूजन से रिलेटेड तो विल डेफिनेटली बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. अगर सेशन पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करना है. अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा. और अगर किसी क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको डाउट हो तो यू कैन ऑलवेज कमेंट. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. विल सी यू इन अनदर सेशन. बाय बाय.